अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, ये जो आपका लास्ट टाइम का फ्राइडे को सेकंड लेक्चर जो हमारा रहता था, जिसकी मैंने आपसे कहा था मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी, ये वो लेक्चर है आपका, और अटेंडेंस में आपकी मार्क कर लूँगी। हमने इसमें लास्ट टाइम जो हमारी क्लास थी उसमें हमने हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी को हम पढ़ चुके थे। नाउ इट इज़ पिस्टोरियल सोसाइटी. Pastoral refers to the rearing and herding of animals such as cattle, goat, sheep, camel, or horses. Pastoral society depends upon domesticated animals. These types of societies are found in parts of Asia, Africa, and the Middle East. Since pastoralism involves the rearing and herding of cattle and other animals, the society involved in this type of economic activity are usually found in areas that are conducive to grazing of the cattle. Dense grassland for cattle, mountainous regions for sheep and goat, or deserts for camels. These areas may not be used for cultivation or agriculture but can support different livestock. Seasonal changes and the availability of grazing lands may force pastoral groups to migrate from one place to another. These groups are able to move over long distance because of the availability of and the use of animal transports. Since such societies are nomadic by nature, there is little chance of accumulation of possession and or the existence of property. The domestication of animals ensures regular supply of food, and therefore these societies are larger in size than the hunting and gathering society. अच्छा जी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में ये था कि वो बहुत स्मॉल सोसाइटीज़ होती थी, पर जो पेस्टोरियल सोसाइटीज़ हैं ये थोड़ी सी बड़ी, उनसे लार्जर सोसाइटीज़ होती थी। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे बेस करती थी। जैसे वो जो हम कहते हैं, जिनको हम मवेशियों को पालना, उनको बड़ा करना और उनसे फूड जो है वो जो है प्रोड्यूस करना, ये वाली सोसाइटी ये काम करती होती थी। और इसी वजह से ये एक ही जगह पे बेसिकली लाइफ स्टॉक जो अभी भी होता है, काम जो है एनिमल्स को जो हम लाइफ स्टॉक के थ्रू करते हैं, लाइक आप उनको मतलब जो छोटे एनिमल्स होते हैं आप उनको बड़ा करते हो, फिर उनसे दूध और इस तरह की चीज़ें या कल्टीवेशन में जो काम आती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये सोसाइटीज़ या हॉर्स कैमल्स को भी करते हैं लोग, इसमें कैटल्स आ जाती हैं, गोट्स, शीप, हॉर्स एंड कैमल्स आ जाते हैं। ये सोसाइटीज़ जो हैं ये एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में काफ़ी पाई जाती हैं, और वहाँ से ही ये स्टार्ट हुई, ठीक है ना। और ये लार्जर साइज़ में होती थी देन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से। और जो इसमें है आ जाती है बेसिकली चीज़ आ जाती है। अच्छा, तो इसमें जो है हाँ, ये जो सोसाइटीज़ हैं ये एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट करती थी ड्यू टू रीजंस लाइक सीजनल चेंज की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे सीजन्स हैं जहाँ पे डोमेस्टिकेशन करना आसान नहीं होता, या एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ये इनको एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो माइग्रेट करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं एग्रीगेरियन सोसाइटी, फार्म्स एंड फार्मिंग सोसाइटी। ये बेसिकली एग्रीकल्चर सोसाइटी का जो एक स्टार्ट था वो एग्रीगेरियन सोसाइटी से था। एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ आर दोज विच आर प्रैक्टिसिंग सम फॉर्म ऑफ सेटल्ड कल्टिवेशन. The earlier stage of settled cultivation developed as horticulture, or the cultivation of plants and flowers in small garden using simple instruments like hoes or digging sticks. Since this is an economic activity which facilitates the settling of groups in one place and a short supply of food. These societies are larger in size than the hunting and food gathering societies. There are more and more stock of material possession. Since this is an economic activity which facilitates the settling of groups in one place and a short supply of food, these societies are large in size than the hunting and gathering societies. There are more and more stock of material possessions, and trade with other villages and groups also take place. Domestication of animals is also practiced in these society. A later development is the emergence of settled agriculture production using better and relatively more modern
प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, एग्रीकेरियन सोसाइटी, ये जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी था। इसमें क्या था, अपने हॉर्टिकल्चर का या कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स का आपने नाम सुना होगा। ये जब स्प्रिंग आता है तो स्पेशली इसके बड़ा काम होता है फ्लावर्स और स्मॉल गार्डन्स के ऊपर। इसी तरह इसमें ऑर्गेनिक फूड या इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। सो बेसिकली जो दरख्त लगाना या ये जो गंदम की काश्त हो गई, चावलों की हो गई, इस तरह की चीज़ें, ये एग्रीगेरियन सोसाइटी से स्टार्ट हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने साथ साथ वो जो ऊपर इसमें इन्होंने बताया हुआ पेस्टोरल सोसाइटी का, एग्रीगेरियन में ही एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को भी साथ साथ लेके चलने लगे। ठीक है, तो फर्दर ये सोसाइटीज़ जो थी ये लार्जर इन साइज़ होती थी और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस तरह से थी कि पहले लिटिल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे वही दरख्तों की सारी काश्त के लिए या फसलों के लिए, पर आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करके जब इसमें और न्यू डेवलपमेंट हुई तो ये न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या मॉडर्न प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आता गया। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद आ जाती है नॉन इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स और ट्रेडिशनल स्टेट्स। हिस्टोरिकल एविडेंस शोज दैट लार्ज वेल डेवलप्ड अर्बन societies existed in different parts of the world since around 6000 BC. These societies had developed cities differentiation on the basis of wealth and power, and were generally ruled by kings or emperors. These societies are called civilizations and were characterized by the use of writing, development in science and technology, and the arts. They also had form of government and were relatively better developed and more coordinated, hence are also called traditional states. These are also called empires as they were large in size and were involved in wars and conquests. The civilization of China, Rome, the Indus Valley civilization, and the Mayan civilization are the example of such societies. These societies were characterized by the division of labor based on age and sex, as soon as some form of specialized activities such as traders, soldiers, government officials, and so on. There was also a large scale differentiation between different classes, such as the ruler classes and the masses, and most of these societies slavery also existed. अच्छा, अब ये जो इसमें नॉन इंडस्ट्रियल अर्बन सेक्टर ट्रेडिशनल स्टेट्स उसके बाद आ जाती है। ये कब स्टार्ट हुई थी? अर्बन सोसाइटीज़ का बिल्कुल स्टार्ट जो है दैट इज़ 6000 BC। ठीक है, जिसमें सोसाइटीज़ में आहिस्ता आहिस्ता सिटीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लग गया। ठीक है, अब ये सोसाइटीज़ किस बेसिस पे बनी? वेल्थ और पावर की बेसिस पे, यानी जिसके पास पैसा ज़्यादा था उनके पास पावर थी उस बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें ये इन सोसाइटीज़ में कौन सा दौर था? दैट इज़ किंग का दौर, और आप कह लो एम्परर का। इन सोसाइटीज़ को स्टार्ट में हम क्या कहते थे? सिविलाइजेशन। इस इन सोसाइटीज़ को कैसे हम करेक्टराइज करते थे? इसमें राइटिंग का कॉन्सेप्ट था, साइंस में डेवलपमेंट, आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सेटअप भी इन सोसाइटीज़ में पाया जाता था। दैट्स वाई इसको हम ट्रेडिशनल स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, और एम्पायर भी कहा जाता है। ये लार्ज साइज़ में थी पुरानी सोसाइटियों से। ठीक है, और इसमें वॉर्स और कॉन्क्वेस्ट यानी जंगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक बादशाह ने दूसरे के ऊपर फतह हासिल कर ली और जगह जो है वो इलाका भी फतेह कर लिया और अपने उसमें ऐड करते गए। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा इन सोसाइटीज़ में आया था। ठीक है, जिससे सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, रोम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मयान सिविलाइजेशन, ये इन सोसाइटीज़ की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद इसमें डिवीजन ऑफ लेबर एज और सेक्स की बेसिस पे इन सोसाइटीज़ में पाया जाता था, और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ थी जैसे ट्रेडर, सोल्जर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इस तरह की। ठीक है, फिर लार्ज स्केल डिफ्रेंसिएशन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस सच एज द रूलर क्लासेस एंड द मैसेस इन मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज़। इसमें स्लेवरी का भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द 17th and 18th century had far-reaching effects in Europe and the rest of the world. The Industrial Revolution resulted in industrialization, the emergence of machine production, and the use of animate
sources of power in the process of production. Industrialization brought about sweeping changes in the scientific and technological field and that revolutionized the means of earning livelihood. Industrialization resulted in the setting up of factories and industries in different parts of the world. This led to mechanization or the use of machines to do the work that was still then being done by human beings. These machines were run by infinite source of power. One consequence of industrialization was the emergence of division of labor based on specialization or the use of specific skills and knowledge. It also resulted in large-scale migration and urbanization. It changed the structure of occupation from agriculture to industrial sector. It witnessed the emergence and formation of nation states, political communities demarcated from each other by clearly defined boundaries. Nation states states have all encompassing power over their citizens life. अच्छा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये 17-18 सेंचुरी में स्टार्ट हुई इंग्लैंड से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड से था, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना आ गया, न्यू मशीन प्रोडक्शन आ गई, फिर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो रेवोल्यूशनराइज हुआ। जिसके पास पावर थी वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड में रेवोल्यूशन आया। लाइवलीहुड, अब आपकी टेक्नोलॉजी उसमें और ज़्यादा आ गई, ठीक है। न्यू फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ बन गई, ठीक है। मैकेनिज्म चेंज हो गया, वो काम जो पहले इंसान करते थे वो मशीनों से किया जाने लगा और अब इंसान जो है वो मशीनों को रेगुलेट करने लगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर और ज़्यादा जो है वो चेंज हो गया क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन बेस्ड होने लगी। जिसके पास ज़्यादा स्किल्स है या नॉलेज है वो उतना ऊपर की पोस्ट पे है, ठीक है। फिर क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करके आए तो अर्बनाइजेशन और एक्सपैंड की। ऑक्यूपेशन का जो एक स्ट्रक्चर है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशंस का और डिफरेंट जॉब्स का, ठीक है। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज आना लोग ट्रांसफ़र होने लगे। फिर यहाँ से नेशंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का कि ये हमारा इलाका है, ये नेशन है, और सिटीज़न्स के ऊपर पावर का, ये जो अब हम कहते हैं ना कि लाइक आप पाकिस्तान के सिटीज़न हो और आपके ऊपर गवर्नमेंट की पावर है या हम एक पाकिस्तानी नेशन है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो इन्होंने बताया हुआ ये टेबल आप लोगों ने ख़ुद पढ़ना है और फिर आप लोगों ने बताना है। इसमें मेजर पॉइंट्स जो हैं इन्होंने बताए हुए हैं कि कौन सी सोसाइटी का कौन कौन सा टाइम पीरियड था और उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ठीक है। ये मैंने पीछे समझा तो दिया है पर आप टेबल से पढ़ लोगे तो टेबल में ज़रा एक समराइज्ड वे में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है चीज़ें, हाँ, ये हमारे ये वाले नोट्स आई थिंक, हाँ, ये वाले नोट्स हमारे एक मिनट में एक और बार देख लूँ। हाँ, ये वाले नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, ये भी अगर आप देखोगे एक वो पीछे वाला भी टेबल आप देख लो और एक ये जो इन्होंने समरी बनाई हुई है कि बहुत अच्छे समराइज्ड वे में उन्होंने बनाया हुआ है, या वो वाला और एक ये जो टाइप्स ऑफ सोसाइटी का बनाया हुआ है, इनको आप लोगों ने ख़ुद रीड करना है और एक बार ये टेबल को चेक कर लेना है, आपको सोसाइटीज़ का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपने करना ये है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने देख कर आना है कि पास्ट की हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ कौन सी थी, अब आपने इसी तरह से ओवरऑल इन सारी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ को देखना है कि पास्ट की कोई ऐसी यूनिक सोसाइटीज़ जो कि रिलेटेड टू देम थी और अब ख़त्म हो गई है और उनके ख़त्म होने की वजह क्या थी, या अभी भी अगर कोई हंटिंग एंड गैदरिंग या एग्रीगेरियन या हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ पाई जाती हैं तो वो कहाँ पाई जाती हैं। ये आप लोगों का टास्क है जो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में करके आना है। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।